નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક અને આપની સાથે હું છું સૌમ્યા। દિવસભરના તમામ મહત્વના સમાચાર પર કરીએ નજર, પરંતુ સૌ પહેલા નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર। પીએમ મોદી મહેસાણા જિલ્લામાં સભા સંબોધન માટે પહોંચ્યા। ત્યાં કહ્યું કે મહેસાણાથી ગાડીઓ આજે જાપાન જાય છે। તમે વિચાર કરો, યુએનના સેક્રેટરીએ મને વિનંતી કરી હતી કે મારે મોઢેરા જવું છે। અમિત શાહના ધારદાર પ્રહાર, કહ્યું કોંગ્રેસે અનેક વર્ષો સુધી શાસન કર્યું પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર તરસ્યું જ રહ્યું। બનાસકાંઠાના થરાદમાં જિગ્નેશ મેવાણીએ ફરી પીએમ મોદી પર કર્યા પ્રહાર, કહ્યું મોદી જે સ્કૂલમાં ભણ્યા એ સ્કૂલ કોંગ્રેસે બનાવી। બાયડમાં ક્રિકેટર હરભજન સિંહ આમ આદમી પાર્ટીમાંથી કરશે પ્રચાર। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં હવે સ્ટાર પ્રચારકોની એન્ટ્રી શરૂ। યુથ કોંગ્રેસમાં સૌથી મોટું ભંગાણ, હાર્દિક પટેલના સમર્થક જયેશ અને બ્રિજેશ પટેલ સહિત 16 પાટીદારોએ જગદીશ ઠાકોરને રાજીનામા મોકલ્યા। વિગતવાર સમાચાર પર હવે નજર કરીએ તો એકવાર ફરી દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી ગયા છે ચૂંટણી પ્રચાર માટે અને મોટી સંખ્યામાં જનસભાને પણ સંબોધન કરી રહ્યા છે। તેમના વિવિધ કાર્યક્રમ પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે અને જ્યારે તેઓ મહેસાણામાં ઉપસ્થિત હતા ત્યારે તેમણે કઈ ખાસ વાત કરી હતી। નીતિન પટેલ વિશે શું હતી, આવો જોઈએ। પીએમ મોદી આજે 20 વર્ષમાં ભાજપની સરકારે કરેલા વિવિધ કામો આજે મહેસાણામાં ગણાવ્યા હતા। સાથે જ આ વખતે સૌથી વધુ મતદાન થાય તે માટે લોકોને પણ શપથ લેવડાવ્યા। પીએમ મોદીએ નીતિન પટેલને જૂના મિત્ર કહી મોઢેરાના સૂર્યગ્રામને યાદ કર્યું। ત્યારે ગુજરાત તકે નીતિન પટેલ સાથે પણ કરી છે ખાસ વાતચીત। સભામાં નરેન્દ્ર મોદીએ 7 બેઠકો ભાજપના ખોળે આપવાની વાત કરી છે અને ઘરે ઘરે પહોંચીને નરેન્દ્ર મોદી આવ્યા હતા અને તેમને પ્રણામ કીધા છે। તેવી એક હુમન જે વાત કહી શકાય તેવું કહીને મત બટોરવાની જે વાત કહી શકાય એવું કર્યું છે। તો આપણી સાથે હાલમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ હાજર છે। તો આપણે એમને પૂછીશું તો શું હવે વીજળી પાણીનો પ્રશ્ન નથી તો મોદીના નામે શું હવે આપણે જીતીશું? નીતિનભાઈ, આપણે હવે નરેન્દ્ર મોદીના નામે આપણે હવે વિજય બનાવીશું? જો નરેન્દ્રભાઈએ જે પ્રવચન કર્યું એ ખૂબ નવી પેઢી માટે જાણવા જોગ હતું। સાહેબે ખુદે કહ્યું કે 20-25 વર્ષના યુવાનોને તો આ બધી તકલીફો જે ભૂતકાળમાં હતી એ ખ્યાલ જ નહીં હોય અને અમારી ભારતીય જનતા પક્ષની સરકારે છેલ્લા 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં જે શાસન કર્યું, જે વ્યવસ્થા ઊભી કરી, જે નવી નવી યોજનાઓનો અમલ કર્યો એના કારણે ભૂતકાળમાં આપણા વડીલો અને બાપદાદાઓને પીવાનું પાણી હોય, ખેતીનું પાણી હોય, વીજળીની વ્યવસ્થા હોય, શિક્ષણની વ્યવસ્થા હોય, આરોગ્યની વ્યવસ્થા હોય, બધું નહોતું મળતું અને હવે ભારતીય જનતા પક્ષના શાસનથી નરેન્દ્રભાઈની કુશળ નેતૃત્વના કારણે જે મળતું થયું છે એ મોદી સાહેબે ખાસ નવી પેઢીને અનુલક્ષીને કહ્યું છે કે આ બધું નહોતું એ અમે કર્યું અને હજુ વધુ સારું કરવું છે। હજુ સૌર ઉર્જાનો વધુ ઉપયોગ કરવો છે, પેટ્રોલ ડીઝલના વપરાશમાંથી મુક્તિ મેળવવી છે, પર્યાવરણ બચાવવું છે, સસ્તી અને પર્યાવરણ ફ્રેન્ડલી એટલે કે ઇકો ફ્રેન્ડલી વીજળી વાપરવી છે, સૌર ઉર્જા વધારવી છે, પવનચક્કીનો ઉપયોગ વધારવો છે। આ બધું જ મોદી સાહેબે જે કહ્યું એ નવી પેઢીને અનુલક્ષીને કેન્દ્રની મોદી સાહેબની સરકાર અને ગુજરાતની ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકાર હવે જે કામ કરવાનું છે એની રૂપરેખા નરેન્દ્રભાઈ આપી છે। મોદી જીતશે કે ઉમેદવાર જીતશે? મોદીના નામે જો મોદી સાહેબ અને અમારું કમળ એ અમારા એક પ્રતિષ્ઠિત ચિહ્નો છે। મોદી સાહેબનો ચહેરો અને કમળનું નિશાન અને ભારતીય જનતા પક્ષનું નામ, આ 3 વસ્તુ જ્યાં જોડાય એટલે ઉમેદવારોને વધુ વિજયી બનાવવા માટે મતદારોનો ઉત્સાહ થાય છે। આજે નીતિનભાઈ સ્ટેજ ઉપર મોદી સાહેબે તમને યાદ ના કર્યા, બાકી દરેક જગ્યાએ નીતિનભાઈને તો યાદ સ્ટેજ ઉપર કરે છે। આજે તમારું નામ તમારા ધ્યાન બહાર ગયું છે। મોદી સાહેબ અમારા સિનિયર નેતા છે। મેં વર્ષો સુધી એટલે કે મુખ્યમંત્રી તરીકે મોદી સાહેબ હતા ત્યાં સુધી એમની સાથે કામ કર્યું છે। તેઓ શ્રી સંગઠનમાં મહામંત્રી હતા ત્યારથી એમની સાથે કામ કર્યું છે અને અત્યારે પણ વડાપ્રધાન થયા પછી પણ હું ભલે સરકારમાં નથી પણ સતત અમારો સંપર્ક ચાલુ છે। એટલે અમારો નાતો એ કાર્યકર અને નેતાનો નાતો છે, 2 કાર્યકરોનો નાતો છે, 2 સાથીઓનો નાતો છે।
નરેન્દ્ર મોદીની સભાને લઈને સારું એવું અહીંયા આગળ પ્રચાર થઈ રહ્યો છે અને મોદીના કહેવા મુજબ અહીંયા આગળ ભાજપમાં માત્ર મોદી જ ચાલશે અને ઘરે ઘરે મોદીના સંદેશ આપવાની જ્યારે વાત કરી છે ત્યારે નીતિન પટેલે એવું કહ્યું છે કે ઉમેદવારની સાથે સાથે એમના પક્ષનું નિશાન અને એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. કામિની આચાર્ય, ગુજરાત તક, મહેસાણા. આગળ વાત કરીએ તો ચૂંટણીના અવનવા રંગ ગુજરાત તક આપને બતાવતું હોય છે, ત્યારે એવામાં એક એવા સમાચાર સામે આવ્યા છે. વિડીયો જે છે એ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વિડીયો મહેસાણાનો છે અને પીએમ મોદીના સભા દરમિયાનનો છે. કાર્યકરો રીતસરની પડાપડી કરી રહ્યા છે ટી શર્ટ અને ટોપી લેવા માટે, જેનો વિડીયો અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ચૂકી છે, ત્યારે ભાજપ દ્વારા સભાઓનો દોર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આજ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીની સભામાં કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે ટોપી અને ટી શર્ટ લેવા માટે પડાપડી થઈ, જેનો વિડીયો અત્યારે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, આ દરમિયાન ટોપી અને ટી શર્ટ લેવા માટે લોકો એકબીજા પાસેથી ઝૂંટવી પણ લેતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો વધુ સમાચાર પર કરીશું નજર, પરંતુ હાલ રોકાઈશું વિરામ માટે. આપ જોતા રહો ગુજરાત તક. તો આરએસએસ અને જનસંઘ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે બની એ બહુ જલ્દી ભૂતકાળ બની છે. ગુજરાતના લોકો સ્વાભિમાની લોકો, એમને સંગઠનનો ડર પણ લાગે છે અને એટલા જ માટે એ એટેક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અમે ભાજપની જેમ કાગળ ઉપર દારૂબંધી અને પાછળથી ખિસ્સા ભરવાનો કાર્યક્રમ નહીં કરીએ. ભરતી અટકી પડી છે. શા માટે અટકી પડી છે? 27 વર્ષથી શાસનમાં છે ભારતીય જનતા પાર્ટી, તેના કારણે કોંગ્રેસે શોધવા જોઈએ. સામાન્ય રીતે પૃથ્વીનો ગોળો ઊંધો થઈ જાય એવા કોઈ ચાન્સીસ નથી, પણ ધારો કે થઈ જાય તો પણ ભાજપ આ જન્મમાં ઇમ્પોસિબલ. ગુજરાત તક આવી રહ્યું છે નેતાઓ અને જનતાનો મિજાજ જાણવા. કોંગ્રેસની ફાઇટ છે લોકશાહીને બચાવવા માટે. આજ યુવાઓ સાથે અમે વાત કરવા માટે આવી પહોંચ્યા છીએ સંસ્કારી નગરી વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીમાં. ગુજરાત તકનો રથ અમદાવાદથી પહોંચી ચૂક્યો છે રાજકોટમાં. જય દ્વારકાધીશ. ગુજરાત તકની ટીમ પહોંચી છે દ્વારિકા નગરીમાં. ગુજરાત તકનો ચૂંટણી રથ જે છે તે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પહોંચી આવ્યો હતો. વિધાનસભાની ચૂંટણી આ વખતે ખૂબ જ રસપ્રદ રહેવાની છે. વિરામ બાદ આપનું ફરી સ્વાગત છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ JP નડ્ડા ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને તેઓ જોરોશોરોથી પ્રચાર પ્રસારમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. એવામાં ગુજરાત તકે કરી છે ખાસ તેમની સાથે વાતચીત, જેમાં તેમણે ઘણા બધા રાઝ ખોલ્યા છે. શું કહ્યું છે આવો સાંભળીએ. गुजरात के चुनाव चल रहे हैं. हमारे साथ है बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा. नड्डा जी, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है आपके सामने. इसको किस तरीके से चुनौती के रूप में आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 2.5 दशक के अंदर सबसे कम सीटों पर जीती थी, यानी कि आप 100 का जो सैकड़ा है वो पार नहीं कर पाए थे. देखिए, सबसे पहली बात तो हिमांशु जी, आप एक बात समझ लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज गुजरात की धरती पर है ही नहीं. यहाँ एक नया शब्द आया है, वो है प्रो इनकम्बेंसी. लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान रखते हैं. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका अथाह प्रेम है और अटूट विश्वास है, और गुजरात जिस तरीके से विकास किया है उसको प्रति बारंबार भारतीय जनता पार्टी को और कमल के निशान को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मोहर लगाने का काम गुजरात ने किया है. अब आपने इस चुनाव के बारे में चर्चा की. मुझे लंबा समय हो गया है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए. यह चुनाव मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं जो एक तरफा चुनाव है, और एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें. इतने लंबे अंतराल में कई लोग कई तरीके से चुनाव को भटकाने की कोशिश करते हैं. जितना वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही गुजरात की जनता स्पष्ट हो रही है कि उनका हित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनका हित गुजरात के विकास में है, उनका हित गुजरात को आगे ले जाने में कमल के निशान में है. इसलिए मैं ये समझता हूं कि यह चुनाव एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है.
कुछ पार्टियां आईं, हल्ला किया, हल्ला करने के बाद उनको गुजरात की जनता ने एक तरीके से नकार दिया, उनकी बात भी नहीं सुनी और इसलिए स्पष्ट रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। और जहां तक विकास का सवाल है, मैं कई बार गुजरात आता रहता हूं, हर बार आता हूं तो गुजरात में कहीं नया हाईवे दिखता है, हर बार आता हूं तो कहीं नया फ्लाईओवर दिखता है, हर बार आता हूं तो कहीं राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिखता है। जब मैं आता हूं यहाँ पर तो ये गिफ्ट सिटी देखता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब देखता हूं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो विकास के नए नए आयाम हमको दिखने को मिलते हैं। अभी मैं पिछली बार आया था तो एक ऐसे होटल में ठहरा जिसमें पहली बार मैंने देखा अपने देश में कि उसके नीचे एक रेलवे स्टेशन है। तो ये चीज़ें जो हमको देखने को मिलती हैं वह गुजरात की धरती पर है और गुजरात के लोगों को विकास में अथाह प्रेम है, मोदी जी में अथाह विश्वास है, अटूट विश्वास है। सर, इतना कुछ देखने को मिलता है इस गुजरात चुनाव के अंदर। ओवैसी साहब की पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, आपको लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, हम दूसरे के दृष्टि से अपना फायदा देखते ही नहीं है। ये आए, इनका स्वागत है, गुजरात में टूरिज्म करके चले जाएं, ये जाएंगे, इनको भेज देंगे लोग। आपने बहुत पहले 2 महीने पहले मुझसे पूछा था आम आदमी पार्टी, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी का है क्या यहाँ। और 8 तारीख को मैं और आपसे पूछूंगा कि कितनों पर जमानत जब्त हुई और कितनी सीटें इनकी साफ हो गई। तो ये बैनर बेस्ड पार्टियां हैं। गुजरात गोवा में भी गए थे तो बीजेपी से ज्यादा बैनर इनके थे। ये उत्तराखंड में गए थे तो आपने मेरे से सवाल पूछा था कि इस बार तो उत्तराखंड में आपसे आपका साफ सफाया हो जाएगा। ऐसा उनका सफाया हुआ कि 69 सीट्स में लड़े और 68 पर जमानत जब्त करके हटे। वो भी आते हैं, घूम करके चले जाते हैं, उनका भी ठीक है। उन्होंने, देखिए, वह एक धर्म आधारित पार्टी है और वो धर्म आधारित विषयों को रखते हैं। और गुजरात की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के मोदी जी के साथ खड़ी होती है। इसलिए उनको कोई यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए, प्रजातंत्र है हिमांशु जी, प्रजातंत्र में ये पार्टियां आती हैं, अपने अपनी बात को कह के जाती हैं। जिस पार्टी में दम होता है, जिस पार्टी की विचार में ताकत होती है, वो खड़ी हो जाती है। आपकी लड़ाई गुजरात चुनाव में किस पार्टी से? यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, वैसे तो लड़ाई किसी से है नहीं, लड़ाई दिखती ही नहीं है, लेकिन वो पुरानी पार्टी है, कुछ उसके पुराने नेता हैं, वो छिटपुट कहीं पर कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे दिखता है। सर, एक सवाल ये है, इस चुनाव में आपने जो वर्तमान में आपके विधायक थे 44 विधायक, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम हैं नितिन पटेल, भूपेंद्र चूडासमा, ये सारे लोगों की टिकट काट दी आपने। काटी नहीं है, नई जिम्मेवारियों में डाला। ये शब्दावली आपकी है, हमारी नहीं होती। हमारे यहाँ आजीवन कार्यकर्ता होता है और उसका आदर होता है। उन्होंने जीवन भर काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, हम आदर के साथ उनको देखते हैं, लेकिन नई जिम्मेवारियों के साथ जोड़ते हैं। अब जगत प्रकाश नड्डा हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं रहेगा ना, इतना तो मुझे मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, लेकिन अंतिम सांस तक पार्टी के लिए काम करेगा। तो हमारे यहाँ जिम्मेवारियां मिलती हैं। अब रूपानी साहब है, उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया है, वो इतने आतुर हैं पंजाब के काम की दृष्टि से। हमने कहा भी चुनाव हो जाए, उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे, पंजाब में भी हम फतह करेंगे, अगली बार हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जिनको नई जिम्मेदारी दी है उनमें से ज्यादातर विधायक 1.5 दर्जन जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। उनकी इच्छा होती है, कुछ लोग वापस ले लेते हैं, कुछ लोग थोड़े दिनों में वापस ले लेंगे। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक लगता नहीं, सब कुछ ठीक है। लगने का सवाल तो तब होना जब कोई गड़बड़ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जीवंत पार्टी है, परिवार है। आपके बेटा आपसे नहीं नाराज हो जाता है, आपका भाई नाराज नहीं हो जाता है तो दूसरे दिन मिल नहीं जाता है, साथ नहीं चलते हैं। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई जब मैं वडोदरा या गया था नांदोद सीट पे, तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग आ गए, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक जो है छोड़ कर आए हैं, उनको टिकट दे दिए भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, नाराजगी उससे हमारे हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बड़ी हुई है।
आखिर एक समय में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की है, तो इसमें सोशलिस्ट भी आए हैं, कांग्रेस के लोग भी आए हैं, राष्ट्रवाद जो राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत थे कांग्रेस पार्टी में, उनको नहीं दिखता था कि देश का कोई भला होने वाला है, वो हमारे साथ आए हैं। आखिर बड़ा कैसे हुई है पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी है, और सबको साथ लेकर के समावेश करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के मूल विचार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया? क्या हम उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बीजेपी का डाइजेस्ट सिस्टम ज्यादा मजबूत था, पार्टी मजबूत है तो इसलिए सब कुछ, सारा सिस्टम मजबूत तो होना ही है। सर एक सवाल ये है, आम आदमी पार्टी का एक आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव आपने गुजरात चुनाव के साथ करा दिए, सोची समझी रणनीति के तहत आपने ऐसा कराया। पहले तीनों एमसीडी को एक करने का प्रस्ताव आपने संसद में लेके आए, फिर चुनाव जो है गुजरात चुनाव के साथ करा दिए, जिससे कि वो कैंपेन ढंग से न कर पाए, क्योंकि उनका कहना है हम छोटी पार्टी, हमारे पास कम संसाधन है। ऐसा है, चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, ये क्या मतलब हुआ? जब हम चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो आप बोलते हो कि भाग गए चुनाव से, अब जब हम बोलते हैं आ जाओ चुनाव के लिए तो बोलते हो कि अब हमारे को मुसीबत में डाल दिए। ये क्या तरीका है सोचने का? आपने कहा एमसीडी यूनाइट की, गृह मंत्री जी और दिल्ली के सांसदों ने पार्लियामेंट की धरती पर जवाब दिया कि नहीं दिया कि क्या साजिश थी? कोई जवाब है आम आदमी पार्टी के पास? उन्होंने डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, चुनाव नहीं कराना है क्या? तो चुनाव हो गए। तो इसमें ये हर कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा, मैं सैटरडे को चुनाव कराऊं, संडे को नहीं कराऊं, ये क्या मतलब है? ये कोई सोच है? ये कोई तरीका है? मतलब अंपायर भी तुम्हारा, गेम के रूल्स भी तुम्हारे, फुटबॉल की टीम भी तुम्हारी और फील्ड भी तुम्हारी, ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़ने आते तो खिलाड़ी बन के लड़ो। सर एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल के अंदर मसाज का वीडियो सामने आया है, जो टिकट बेचने के वीडियो सामने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर रोज मनोहर कहानियां सुना देती है। ऐसा है, क्षमा करिएगा, इस स्तर के नेता इस लेवल पर आप उनको कवरेज देते हैं, मुझे शर्म आती। आप उनका स्तर देखिए, वो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हैं, क्या क्या और क्या तमाशा है। मैं राजनीति में स्वच्छता लाऊंगा, भगवान बचाए ऐसे स्वच्छ लोगों से, भगवान बचाए। अभी मनीष सिसोदिया टीवी पर स्टेटमेंट दे रहा था, कह रहा था शर्म आनी चाहिए आरोप लगाते हुए, उसे शर्म नहीं आ रही है इतना सफेद झूठ बोलते हुए। एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया, दुनिया की आंखों में धूल झोंक दिया, और ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करते हैं, आप कवरेज देते हैं, भगवान बचाए। सर राहुल गांधी एक कांग्रेस के बड़े नेता है, भारत छोड़ो यात्रा के अंदर 2 दिन का विराम लेकर आए थे गुजरात चुनाव में। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम मोरबी पर राजनीति नहीं करना चाहते थे, अभी तक बयान नहीं दिया, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद जो असली दोषी हैं मोरबी के, उनको अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मेरे भी प्रश्न का वो जवाब नहीं दे रहे। मेधा पाटकर से क्या दोस्ती निभा रहे हो? नर्मदा के पानी को रोकने वाली 15 साल, जिसने सरदार सरोवर डैम को रोका, गुजरात की हितों के साथ अन्याय किया, जो गुजरात के हितों के साथ के खिलाफ लड़ती रही, उसके साथ आप साथ चलने को तैयार होते हैं। राहुल गांधी जी को क्या गुजरात से इंटरेस्ट है? ऐसे लोगों के प्रश्नों का जवाब देने की आवश्यकता है क्या? भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, जोड़ों की बात करते हैं, पार्टी जोड़ लें, बहुत बड़ी बात होगी। सर मोरबी की घटना का कुछ इफेक्ट आप देखते हैं इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के प्रति सबका अटूट विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अथाह प्रेम है। सब जानते हैं कि सब चीजों के साथ न्याय करते हुए आगे बढ़ने पर गुजरात को ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। सर एक सवाल ये है, कितनी सीटें आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार आप बहुत नैरो मार्जिन से सरकार बना पाए थे, इस बार कौन सी वो कमियां थी जिनको आपने दूर किया और क्या टारगेट है? मैं हमेशा सारी कमियों को हम सब लोग दूर करते रहते हैं। रिकॉर्ड ब्रेक हम चुनाव जीतेंगे और सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तो सर 149 सीट्स का है यहाँ पर, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और दिल्ली एमसीडी में सर अच्छी तरीके से जीतेंगे। और बाकी हम आपको नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमांशु मिश्रा। तो बुलेटिन में અત્યારે બસ આટલું જ। મને આપશો રજા, આપ જોતા રહો ગુજરાત તક। નમસ્કાર।